મતના મહાસંગ્રામની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. એક તરફ વાર પલટવાર અને બીજી તરફ ઝંઝાવાતી પ્રચાર. પરંતુ આખરે બાજી તો એ જ મારશે કે જેના તરફ હશે જનતાનો ઝુકાવ. અને એમાં પણ ખાસ કરીને આજનો યુવા વર્ગ, કે જ્યાં યુવા વર્ગને ભારતનું ભવિષ્ય માનવામાં આવે છે. અને જ્યાં બીજી તરફ છે સોશિયલ મીડિયાનો યુગ, ત્યારે અત્યારે વાઇબ્સનું ખૂબ ચલણ છે. હેપી વાઇબ્સ, સેડ વાઇબ્સ, ક્યુરિયસ વાઇબ્સ. તો આજે ઝી 24 કલાક આવી પહોંચ્યું છે લવાડ સ્થિત રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી. અને આપણી સાથે કેટલાક યુવાઓ જોડાયા છે. તેમનો મત જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે તેમની શું વિચારધારા છે અને તેમનો શું મત છે, તેમના શું પ્રશ્નો છે, તેમની શું સમસ્યા છે. નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે વત્સલ. क्या नाम है आपका? सावनी उपाध्याय. क्या करते हो आप? फिलहाल मैं डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रही हूँ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से. उसके बाद क्या प्लानिंग है? मैं आर्मी के लिए तैयारी कर रही हूँ फिलहाल. होपफुली मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ. तो आर्मी में जाने का ख्याल कैसे आया आपको? जी, मैं कैप्टन सौरभ कालिया जी जो थे करगिल युद्ध में, उनके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया. और मैं कई फैमिली से मिली, मैं उनकी फैमिली से मिली, और वो जब कहानियाँ सुनी तो मुझे लगा शायद ये वो तरीका है जिससे मैं अपने देश के लिए ज़्यादा योगदान दे पाऊँ. और वो वर्दी जो है उसका प्यार तो अलग ही होता है. क्या लगता है आपको जॉब मिल जाएगी? जी, वही प्रश्न है. हम यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड डिग्री कर रहे हैं और हम काफ़ी लकी हैं, फॉर्चुनेट है कि हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे हैं. बट जो सरकार है उससे बस मेरी एक उम्मीद है, एक अर्ज है कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए. इलेक्शन आ रहा है, पता है आपको? जी बिल्कुल. तो आप वोट करते हो? जी, मैं अभी 19 साल की हूँ तो मैं पहली बार वोट करूँगी. ओहो, फर्स्ट टाइम वोटर्स. तो क्या एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है. काफ़ी डर भी लग रहा है कि हमारा एक वोट जो जाएगा वो देश के भविष्य की ओर एक वोट है, तो वो वोट सही जाए. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है. શું નામ? પ્રિન્સ વાઘેલા. શું કરો છો તમે? હું બીટેક સાયબર સિક્યુરિટી ભણું છું. આમાં આવા પાછળનું કારણ શું? મને પહેલેથી જ તે એક તો કમ્પ્યુટર ક્ષેત્રમાં રસ હતો અને સાયબર સિક્યુરિટી નામ સાંભળીને એણે મારી ઉત્સુકતા વધારી, એટલે મેં આ વિષયમાં એડમિશન લીધું. મળી જશે નોકરી? આત્મવિશ્વાસ છે. આત્મવિશ્વાસ છે, પણ જે રીતે બેરોજગારીની વાત થઈ રહી છે તો એની સાથે કેટલા સંમત છો કે બેરોજગારી કેટલી છે? બેરોજગારી છે, હું માનું છું. પેપર જે ફૂટે છે, હવે થોડાક દિવસો પહેલાં જ તે જાહેરાત થઈ હતી, ગુજરાત પોલીસમાં 12,000 ભરતીઓ બહાર પડી હતી. હા, તો હવે આ જે ભરતીઓ સરકાર બહાર પાડે છે, બટ લોકોને નોકરી ક્યારે મળશે? જ્યારે પેપર સમૂહ સુથરું પાર પડે. પેપર ના ફૂટવા જોઈએ મારા મત મુજબ. તમારા મતે સરકાર કેવી હોવી જોઈએ, નેતા કેવા હોવા જોઈએ? ભણેલા ગણેલા, દૂરદર્શી. તો અત્યારે કેવા નેતા છે? ભણેલા છે બટ બધા નહીં. તો શું બદલાવ આવવો જોઈએ? એક બદલાવ, મેં હમણાં જ તે એડમિશન લીધો કોલેજમાં, મને જે વાત નથી ગમી કે જે રિઝર્વેશન રાખવામાં આવે છે, અનામત મળે છે, એ જાતિ ઉપર મળે છે. જાતિ ઉપરથી બદલીને આવક ઉપર રાખવું જોઈએ. હવે કોઈ નીચી જાતિ છે બટ એના પપ્પાને એટલી બધી આવક છે, કરોડોમાં આવક છે, હવે એમને અનામતની જ શું જરૂર છે? પરંતુ કોઈ હવે એવા લોકો પણ છે, બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિય છે, પણ ઘણી નીચી આવક છે, હવે એમને અનામત નહીં મળે, એમના છોકરા પાછળ રહે, તો એ ક્યાંનો ન્યાય થયો? તમે પહેલી વાર મત આપવાના છો? હા, હું થોડાક દિવસો પહેલાં જ 18 વર્ષનો થયો છું. કઈ તારીખે ચૂંટણી છે? યાદ નથી મને. કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને મત આપશો? હું એટલું જ ધ્યાનમાં રાખીશ કે જે કોઈ પણ ચૂંટાવો જોઈએ એ વિદ્યાર્થીઓ માટે કામ કરવો જોઈએ અને નોકરીની તકો ઊભી થવી જોઈએ. ઓવરઓલ વિકાસ થવો જોઈએ. બિલકુલ, વાત થઈ રહી છે વિકાસની, અને જે રીતે અહીં પણ તમે સાંભળ્યું કે નોકરીની વાતો તો પહેલાં જ આવે છે. બીજા પણ એક મિત્ર છે. कहाँ से हो आप? मैं पटना से हूँ, बिहार. अभी ये भाई ने बहुत अच्छी बात करी विकास की. आपके हिसाब से विकास की डेफिनेशन क्या?
विकास की डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव है। पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ मास्टर्स इन लॉ कर रहा हूँ, क्रिमिनल सिक्योरिटी लॉ। सिंस बीइंग लॉयर मैं ये बोलना चाहूँगा विकास की डेफिनेशन काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो ये एक पर्सन के डेफिनेशन पे नहीं मैटर करती है कि एक कहीं पुल बन गया, कहीं हॉस्पिटल बन गया या स्कूल बन गया। ये एक लॉन्ग टर्म ये देखा जाता है विकास कैसे हो रहा है। विकास एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी बन रही है तो उससे एक बार बना दिए, स्कूल्स खोल लिए, अपॉइंट कर दिए फैकल्टीज़ को, तो उस बात तक सीमित नहीं रहती है। क्या वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या वो जो चीज़ हम जिस एम के लिए खोले थे यूनिवर्सिटी, क्या वो फुलफ़िल कर पा रहा है? क्या स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, क्या वो किस सेक्टर में जा रहे हैं, कैसे वो अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं? या जो ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, इनका है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए? तो ये देखा जाए कि हाँ विकास सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। पटना में कितना डेवलपमेंट है, गुजरात में कितना डेवलपमेंट है? जैसे मैं पटना पिछले करीब 7-8 सालों से रह रहा हूँ, तो वहाँ ये देख पा रहा हूँ कि वहाँ जो गवर्नमेंट सरकार है, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे। सरकार एक मेन फिगर जो वो सेम है, लेकिन जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो चेंज होती जा रही है। वो गुजरात में वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में, और एक जो सिंगल फिगर है और जो टीम है गवर्नमेंट की वो बरकरार रहती हैं। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो एक लीडर्स होते हैं वो चेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है चेंज होने की वहाँ पे बिहार में। तो अभी लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग करेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात ये है मैं बिहार से हूँ। दूसरी बात ये है कि जो मेरा एक डेट ऑफ इलेक्शन है, जहाँ पोलिंग डेट है, वो जून में पड़ रहा है। और अगर पहली बात ये भी है कि अगर छुट्टी मिलेगी और नहीं भी मिलती है तो फिर यहाँ से जाना और तुरंत वापस आना, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम्स रहेंगे, तो ये मुश्किल होगा। कहाँ से हो आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नीरज मेहरा। क्या डिफरेंस लग रहा है उत्तराखंड और यहाँ में? सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं बोलूँगा यहाँ की गर्मी, क्योंकि मैं एक ऐसे पहाड़ी रीजन से आया हूँ जहाँ बहुत ठंडा है और यहाँ बहुत गर्मी है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यहाँ की गर्मी। अभी यहाँ पे सब इलेक्शंस का चल रहा है माहौल, आपके यहाँ भी होगा इलेक्शन, तो सोशल मीडिया का भी अभी तो ज़माना आ गया है, सब वाइब्स की बात करते हैं, हैप्पी वाइब्स, सैड वाइब्स, क्यूरियस, ये वो। इलेक्शन को लेके कैसी वाइब्स आ रही है? इलेक्शन को लेके एज सच तो मैं क्या ही बताऊँ कैसी वाइब आ रही है। नॉर्मल है, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट तो मेरा एक अपना अलग पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, तो मेरे लिए तो सब नॉर्मल है, वाइब्स है। डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए मैं तो उसी को वोट करूँगा। पहली बार वोट करोगे? नहीं, मैं 21 का हूँ, तो मैं सेकेंड टाइम वोट करूँगा इस बार। किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट करोगे? क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन में कर रहा हूँ, तो एज सच और जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, तो जो मेरा हमेशा अगर मैं किसी चीज़ पार्टी को वोट करूँगा तो मैं नेशनल सिक्योरिटी और एक डेवलपमेंट को देख के वोट करूँगा कि कौन डेवलपमेंट कितना कर पा रहा है कंट्री में, और कौन हमारी कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी उसको लेकर कितना फोकस और डेवलपमेंट कर पा रहा है उस चीज़ को लेकर। तो जो मेरा गोल है इसी पे रहेगा डेवलप। तो कैसी सरकार होनी चाहिए? जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो सबसे बड़ा यही है, जो अब हमारा मिलिट्री है, ठीक है, उस पर सबसे ज़्यादा एक फोकस रहना चाहिए। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो, क्योंकि हमारा जितना भी जो डेवलपमेंट होता है लॉजिस्टिक्स से लेके या लोगों के आने जाने को, एक बहुत मेजर चंक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। अगर हम चाहते हैं कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए तो उसके लिए भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो मेरा मेन फोकस रहेगा, जो मैं चाहता हूँ पार्टीज़ का रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में होना चाहिए। उत्तराखंड में क्या हाल है सरकार का? उत्तराखंड में काफ़ी पॉलिटिकली तो काफ़ी अलग चीज़ें चल रही है। जैसे अभी सब बोल रहे थे डेवलपमेंट को लेके, तो सबसे पहली बात, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी रीजन है, तो वहाँ अगर डेवलपमेंट हो रहा है अच्छी बात है, पर उसी के साथ लोग भी प्रोटेस्ट करें उस डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय होता है वहाँ का। तो वहाँ पॉलिटिक्स थोड़ी अलग चलती है प्लेन्स को लेके, मैं बोलूँगा। आपको पता है कि ये इलेक्शन किस चीज़ का है? हमारा लोकसभा का इलेक्शन है। तो ऑल ओवर इंडिया में कितनी सीट है लोकसभा की, पता है? मैं कहूँगा 400। 543। कहाँ से हो आप? मैं बिहार रोहतास से हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या पढ़ रहे हो, आगे क्या प्लान है? मैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में, और आगे मैं एकेडमिया ज्वाइन करना चाहता हूँ रिसर्च फील्ड में, इंटरनेशनल रिलेशन में। वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट, क्या डिफरेंस? डिफरेंस रिसोर्सेज को लेके है, वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, यहाँ पे है। उसके बाद पहले उन्होंने बोला स्टेबिलिटी को लेके है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। एक ही फिगर है बहुत 20 सालों से, उसके पहले भी 10-15 साल तक एक ही फिगर थे, पहले लालू जी थे, अब नीतीश कुमार है।
लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम हुआ है, वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स ओरिएंटेड ज़्यादातर काम हुए हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है। अभी तो सब वोट करेंगे, उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन पीएम बनेगा। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार जो है उसी की बनेगी, क्योंकि काम अच्छा हुआ है। पहले भी जिसने जैसे 2019 में हुआ काम, सरकार ने अच्छा किया, अपने जो भी मैनिफेस्टोज थे उस पर काम करा, इकोनॉमी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इस बार भी 19 से 24 तक भी हमने देखा है कि काम हुआ है, तो रिपीट होगा। अगर देखें पीएम फेस के लिए, तो पीएम मोदी जी के ऑप्शन में किसको देखते हो? ऑपोजिशन में आप बोल रहे हो? उनके ऑप्शन में किसको देखते हो? जिस तरह से अभी पीएम मोदी है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके हिसाब से आप किसको देखते हो? अभी तो बीजेपी के अलग तो मुझे नहीं लगता कि कोई है उनके बराबर में। हाँ, अगर बीजेपी में देखें तो पीएम मोदी के बाद बहुत सारे फिगर्स हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह खुद हैं, ऐसे ऐसे फिगर्स हैं, कुछ युवा फिगर्स भी हैं, तो ये हैं। बट अभी फ़िलहाल में दूसरी पार्टीज़ में तो मुझे नहीं लगता कोई है। તો જે રીતે તમે સાંભળ્યું કે યુવાઓમાં ઉત્સાહ છે અને તેમના પ્રશ્નો છે અને એ પ્રશ્નોને બહુ જ સરસ રીતે વાચા આપી રહ્યા છે અને જે રીતે મતદાન થવાનું છે, પણ તમામ લોકોમાં કહેવાની તો એક જ વાત છે કે ભાજપમાં તેમની પાસે ઓપ્શન છે પીએમ મોદીને રિપ્લેસ કરવા માટે, પરંતુ બીજા કોઈ પક્ષમાં તેમને ઓપ્શન નથી દેખાતું। આપણી સાથે બીજા મિત્ર પણ છે। कैसा लग रहा है आपको इलेक्शन को लेके, कैसा माहौल है? अभी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि इलेक्शन भारत में एक फेस्टिवल की तरह, एक पर्व की तरह मनाया जाता है, तो सारे भारतवासी इस पर्व में हिस्सा लें, मैं ये चाहता हूँ, साथ में मनाएं और आगे बढ़कर वोट करें, अपने मनचाही सरकार चुनें और भारत की तरक्की में अपना योगदान दें। आपके हिसाब से आपका जो नेता है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो वो एक ईमानदार व्यक्ति हो, साफ छवि का आदमी हो, परिवारवाद से दूर हो और देश की बात करे, ना कि अपने पार्टी की, ना कि अपने परिवार की, ना अपनी, देश के लिए बात करे वो। विकास, क्या डेफिनेशन विकास की? मेरे लिए विकास ये है कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, भारत एक इंटरनेशनल फोरम पे मजबूत देश बने, एक महाशक्ति बने और भारत की आवाज़ सुनी जाए। 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है, तो एक बहुत ही बड़ा देश है ये, और लोगों को सुना जाए। जैसे पहले भारत को एक गरीब देश माना जाता था, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा विकास हो कि भारत की आवाज़ सारी दुनिया सुने, भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरे और एक विश्व गुरु बने। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अगर देखा जाए तो फिर से हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। और भी दो पार्टियां हैं इस बार, तो आम आदमी पार्टी भी गुजरात में भी कोलैबोरेशन किया है कांग्रेस के साथ, क्या लग रहा है? राइट, तो पिछला जैसे विधानसभा का इलेक्शन रहा, तो उससे ज़्यादा अंतर मुझे दिख नहीं रहा है लोकसभा में। और एक बड़ी बात यह है कि लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री चेहरा होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इस काबिल है अभी कि टक्कर दे पाए। जब भी बात होती है, आम आदमी पार्टी हमेशा दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम की बात करती है, तो आपको क्या लगता है गुजरात की एजुकेशन सिस्टम और दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम, क्या डिफरेंस है दोनों में? मुझे जहाँ तक ये लगता है कि इससे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तो दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, पर मौजूदा सरकार में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। वहीं पर देखा जाए तो गुजरात में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा हुआ है, नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, तो एक तरह से गुजरात अब शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। બિલકુલથી। તો જે રીતે આ યુવા વર્ગ છે, યુવા વર્ગમાં ઉત્સાહ પણ એટલો છે, તેમના પ્રશ્નો પણ છે, અને ખાસ કરીને યુવા વર્ગ એવી સરકાર ઈચ્છે છે કે એ સરકારમાં પરિવારવાદ ન હોય અને જે નેતા છે એ નેતાની છબી સ્વચ્છ હોય। तो अपनी साथ अन्य मित्रों पर તેમની સાથે પણ વાત કરીશું। क्या नाम है आपका? प्रणय राज सिंह राठौर। कहाँ से हो? मैं रतलाम मध्य प्रदेश। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे बैचलर कर रहा हूँ डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में। फ्यूचर प्लान क्या है? सर अभी मैं CDS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश को सर्व करूँ। क्या लगता है जॉब मिल जाएगी? मेहनत पे। इलेक्शन आ रहा है पता है? हाँ। वोट करते हो? अभी मैं पहले बार वोट देने जाऊँगा। ओह, फर्स्ट टाइम वोटर। एक्साइटमेंट बहुत है।
क्या पॉइंट को ध्यान में रख के वोट करोगे? यही कि एक हम अच्छा लीडर और जो हमारी जनता की सुने, ना कि विदेशों की सुने। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो गुजरात की गवर्नमेंट है, क्या डिफरेंस लग रहा है? सर मेरे को ये डिफरेंस लगता है कि गुजरात अभी जैसे यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात का हुआ है, गुजरात मीन्स ग्रोथ। यही चीज़ मैं एमपी में देखता हूँ, मध्य प्रदेश में देखता हूँ, तो इतना ग्रोथ है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, वो भी इतने ही ग्रोथ करे। इलेक्शन आ रहा है तो कैसी वाइब्स आ रही है? अभी तो हम हॉस्टल में हैं सर, अभी तो घर का कुछ पता नहीं, वहाँ तो अभी बारिश। पर एक्साइटमेंट तो होगी ना, वोट कर रहे हो पहली बार, तो कैसी वाइब्स आ रही है? बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। इस बार पहली बार हम भी वोट देने जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। તો ભાઈબંધ મધ્યપ્રદેશના છે અને કહી રહ્યા છે કે મધ્યપ્રદેશની જે સરકાર છે એ ગુજરાતની સરકાર પ્રમાણે થોડા બદલાવ પણ કરે। क्या नाम है आपका? आभा चौहान। कहाँ से हो आप? मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कितने टाइम से गुजरात में हो? 1.5 ईयर, 1.5 साल हो गया मुझे गुजरात में आए। तो गुजरात से अवेयर हो गए? हाँ, ऑलमोस्ट चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से तो हो ही गई हूँ। हाँ, तो आपने जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो वहाँ पे ख़त्म की होगी, अभी यहाँ आगे पढ़ रहे हो, तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या डिफरेंस लग रहा है? एक्चुअली गुजरात इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ग्रोथ और सब चीज़ों में बहुत आगे, जैसे अभी बोला प्रणय ने, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती है ना, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात की है, बेसिकली बीजेपी यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वो बहुत सपोर्टिव है गुजरात को लेके। हर चीज़ देख लो आप, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात में आते हैं, तो गुजरात में अब हर चीज़ अच्छी है, अब क्या बोल सकते हैं इससे। तो पहली बार वोट करने वाले हो, तो पता है ये इलेक्शन किस चीज़ का है? लोकसभा इलेक्शन है ना। लोकसभा की सीट कितनी है इंडिया में? 356 के अराउंड है। 356 या 364। 365। आपका क्या कहना है? 364। 364। 543। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? ऑब्वियसली फैमिली वगैरह सब मोदी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं, तो बननी चाहिए भाई। अब बहुत चेंज आया गवर्नमेंट में। क्यों मोदी? आप देखो ना, नॉर्मल हमारा चीज़ें हैं, हम सिर्फ इंडिया को लेकर नहीं, अगर हम पूरे ग्लोबल पावर को जितना मोदी जी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है और उस चीज़ को प्रमोट किया, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। योगा हमारे यहाँ 100 साल पहले से हो रहा था। योगा को जितने लोग अब जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में तो बहुत कुछ चेंज आया। हाँ, ये बात सही है। जो दावा पे जो हुआ वहाँ पे, वो तो आई होप पूरा इंडिया उससे फैमिलियर तो होगा ही। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, अभी आप वोट करोगे तो किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट करोगे? ध्यान तो पहली चीज़ यही कि हमारा जो इंडिया है वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए। सेकेंडली, एक जो ग्लोबल स्टेटस बना है इंडिया का एज अ वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु की तरह इंडिया आया है, तो वो जो स्टेटस है वो आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए। बस ये 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, फिर हम यंगस्टर्स की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आई विल डू वोटिंग। करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी लग रही है? यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हद तक अच्छी है एंड रिसर्च फील्ड में मेरा काफ़ी हद तक इंटरेस्ट है, सो या रिसर्च फील्ड में यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप कहाँ से हो? जी, मैं उत्तराखंड से हूँ। ओहो, पहाड़ी। तो फिर पहाड़ी एरिया में रहते हो, वहाँ पे पले बड़े हुए हो, यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वैसे मैं हरिद्वार से हूँ, प्लेन एरिया से हूँ। वहाँ से और गुजरात में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? बहुत है यहाँ। तो क्या चाहते हो, मोदी जी अभी पूरे गुजरात में रास्ते में भी एसी लगा दे? बट हाँ, गवर्नमेंट आई लाइक टू से कि मोदी गवर्नमेंट आनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे चेंजेस 2014 के बाद देखने को मिले जो शायद पहले नहीं हुए थे। लाइक रेलवे में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला, और कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंडिया में बहुत बड़े हैं। काइंड ऑफ आप कह लो मेडिकल कॉलेजेस की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ हुई है। 2014 से एक बहुत जो इंक्रीमेंट बढ़ा हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस आप कह लो, स्पेशली जो एक प्रीमियम ट्रेन है, वो भी नहीं आई थी इससे पहले, बट अभी काइंड ऑफ कह लो शायद 41+ वंदे भारत ट्रेन हमारे यहाँ है। तो अभी की जो नई पीढ़ी है वो स्टार्टअप में भी काफ़ी लोग अभी स्टार्टअप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या सोचना है आपका? स्टार्टअप्स को लेके भी काफ़ी प्रायोरिटीज़ दी हैं गवर्नमेंट ने, मेरा ये मानना भी है, क्योंकि हमारे कॉलेज को भी देखा जाए, जो आईडेक्स करके एक है प्रोग्राम जो यहाँ के बीटेक के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी इनोवेशंस के लिए जो बजट वगैरह प्रोवाइड करता है, जो इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करता है आइडियाज़ को लेके, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, तो वो एक हद तक बहुत
सपोर्टिव है गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत अच्छा भी है इनिशिएटिव। तो इलेक्शन आ रहा है, कैसी वाइब्स आ रही है? अच्छी वाइब्स आ रही है। फर्स्ट इलेक्शन है, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो बहुत हूँ, आफ्टर मैं तो फर्स्ट वोट है। फर्स्ट वोटिंग है, एक्साइटेड है, बट घर जाना पड़ेगा यहाँ से 900 કિલોમીટર दूर વોટિંગ કે લીએ। તો પહેલી વાર મત આપવાના છે એટલે ઉત્સાહ છે અને એમના કેટલાક પ્રશ્નો છે અને એ પ્રશ્નોને બહુ જ સારી રીતે એમણે વાચા આપી અને બહુ જ તેમના જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાને ખાસ ધ્યાને રાખીને મત આપશે એટલે અત્યારનો જે યુવા વર્ગ છે એ પણ ખૂબ જ સ્માર્ટ થઈ ગયો છે અને બહુ જ સારી રીતે આ જે ચૂંટણીની પ્રક્રિયા છે એમાં ભાગ પણ લઈ રહ્યો છે અને રસ પણ લઈ રહ્યો છે। अपनी साथ अन्य मित्रों पण छे, તેમની સાથે પણ વાત કરીએ, તેમનો મિજાજ પણ જાણીએ। कहाँ से हो? सर मैं दिल्ली से हूँ। केजरीवाल सरकार सर अभी तो जेल में। क्या चल रहा है वहाँ का केजरीवाल जी का? केजरीवाल जी अभी थोड़ा घोटाले में फंसे हुए हैं। कैसा घोटाला? लिकर केस पे और भी है वहाँ तो क्या लग रहा है कि सरकार तो दिल्ली में आम आदमी की है, तो लोकसभा में क्या होगा? नहीं, दिल्ली का तो हमेशा से ही है कि मतलब इनफैक्ट आम आदमी सरकार भी यही बोलती है कि दिल्ली से आम आदमी फॉर सीएम एंड बीजेपी फॉर पीएम। यही होगा, इवेंचुअली यही होगा। 7 में से 7 दिल्ली में बीजेपी ही आएगी। अभी आप यहाँ पे गुजरात में पढ़ रहे हो, तो कैसा लग रहा है वहाँ की स्कूल जो केजरीवाल बता रहे थे सही में वैसी है या फिर यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है? सर देखिए, स्कूल में डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बट सर अभी जैसा वो बता रहे हैं उस हद तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट सर मैं देख रहा था तो उन्होंने एक क्लासरूम में 30 लाख रुपए का क्लासरूम एक बताया है, उसमें बहुत जगह पे उन्होंने ओवर बजट करके दिखाया क्लासरूम का डेवलपमेंट एंड ऑल, तो वो कई हद तक गलत है। और दूसरा सर मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल की जो अभी रियलिटी है वो मुझे नहीं पता है उस हद तक। एंड सर जब यहाँ पे 2022 में आए थे वो, तो आपको पता है यहाँ पे कैसा रिएक्शन था लोगों का। हाँ। तो बिल्कुल खुश नहीं थे आम आदमी से, और इनफैक्ट अब वो वापस भी चले गए, उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स डाले नहीं है यहाँ पे गुजरात में। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो? यस सर। तो किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट करोगे? सर 2-3 चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं अभी यहाँ पे हम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, तो हम लोगों को ये भी जानना है कि नेशनल लेवल पे एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग जान रहे हैं कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। पिछले 5 सालों से सरकार बात कर रही है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनेगी, बट उसमें अभी तक कोई काम हुआ नहीं आगे। बाकी इकनॉमी वगैरह बहुत सही है, और IMF और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो उसमें अच्छे रिपोर्ट्स दिख रहे हैं। और इनफैक्ट अभी धीरे धीरे अगर आप ग्रोथ रेट में देखें तो इंडिया चाइना को सरपास कर रहा है, तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? शुभम शुक्ला। कहाँ से हो शुक्ला जी? MP रीवा। क्या लग रहा है आपको, MP की जो सरकार है, गुजरात की सरकार है, क्या डिफरेंस देख रहे हो? आई थिंक MP में जो गवर्नमेंट है ना, वो आई थिंक BJP से अलग ही चलती है। सरकार भले वहाँ पे BJP की है, और जो यहाँ आप डबल इंजन की सरकार बोल सकते हो जो गुजरात में चलती है, लेकिन MP में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने काफ़ी टाइम से MP में BJP है, बट डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप किस चीज़ को डेवलपमेंट कहते हो? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी सेक्टर को ले लो, MP काफ़ी पीछे है कंपेयर टू अदर स्टेट जो उसके आसपास है। यूपी ले लो, यूपी को कितना ऐसे लाइक फ्लुएंटली डेवलप कर दिया गया अचानक ही, लाइक कुछ साल पहले योगी जी आए और आज इतना डेवलप्ड हो गया है, लेकिन MP की बात ही नहीं होती नेशनल लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं वो मिसप्लेस सा हो रहा है। कहाँ से हो आप? मैं गाजीपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? मैं 8 महीने से गुजरात में हूँ। कैसा लगा हमारा गुजरात? गुजरात विकास के तौर पर तो अच्छा लगा, पसंद आया। तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसा है? उत्तर प्रदेश का विकास भी अब जब से योगी बाबा की सरकार आई है तब से तीव्र गति पर है, और गुंडा राज एक तरीके से ख़त्म हो गया, सुरक्षा देखी जा रही है, और जो शिक्षा का माहौल है वो भी अच्छा बेहतर बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूपी में और प्रदेश में हमारे भाजपा सही काम कर रही है, तो हम भाजपा के लिए तत्पर हैं, प्रदेश में भी देश में भी। आप कहाँ से हो? जी मैं पटना बिहार से हूँ। क्या प्लानिंग है अभी, क्या कर रहे हो, फ्यूचर प्लान क्या है? जी मेरा अभी तो LLM चल रहा है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, LLM इन क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ, और फ्यूचर प्लान है कि एक अच्छा वकील बनना देश के लिए, और अगर साथ रहा तो राजनीति में उतरना। राजनीति में? ये कुछ जमा नहीं, राजनीति और लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ मतलब?
जी देखिए, बिहार से हूँ, वकालत पढ़ता हूँ और राजनीति पे उतरता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ जो है मुझे एक अच्छा राजनेता मतलब देखो, जब जब ऐसा होता है कि काफ़ी सारे जो राजनेता है उनके घोटाले भी निकलते हैं, तो क्या आप ये सोचकर लॉ पढ़ के राजनीति में जाएंगे कि चलो इससे घोटाले से बच जाएंगे, ये लॉ जान लेते हैं पहले, या फिर ये लॉ पढ़ेंगे तो घोटाला नहीं करेंगे? जी देखिए, मेरा राजनीति में उतरने का यही मकसद रहेगा कि मैं इस भारत को भाग्य विधाता बनाऊं और भारत को आगे बढ़ाऊं। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हूं और मैं यही चाहूँगा कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाऊं। तो मेरा यही मकसद है राजनीति में उतरने का। कहाँ से हो आप? जी बनारस से हैं, काशी। काशी, हर हर गंगे, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है गुजरात में? गुजरात तो बहुत अच्छा है और हम तो यहाँ पर LLM कर ही रहे हैं, तो और बहुत बाकी बहुत चीज़ मिल रहा है। मतलब अभी आपको भी लॉ ही पढ़ लेना है? जी, लॉ ही कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लॉ बहुत सारे ऐसे हैं कि सब लोग मिसयूज़ करते हैं उसके? काफ़ी सारे लॉज ऐसे हैं जिसका मिसयूज़ तो होता ही। अभी आप भारतीय न्याय संहिता आप देख रहे हैं, अभी नया चीज़ आया है। अब भारतीय साख संहिता देख रहे हैं, भारतीय सुरक्षा संहिता, तो ये सब अभी 3 लॉ अभी अमेंड किए हैं आदरणीय। पर सोच लो कि अगर आपको सत्ता दी जाए कि कोई ऐसा लॉ है जिसमें आपको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? लॉ चेंज करने के लिए हम ही आप जैसे लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक एक सुप्रीम है। पब्लिक जो चाहे वो कर सकती है, सत्ता बैठा सकती है, सत्ता गिरा सकती है। पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं होता। तो क्या लग रहा है अभी पब्लिक इस बार किसकी सत्ता बनाएगी, किसकी गिराएगी? वही हर हर मोदी, घर घर मोदी, और क्या। क्यों मोदी? मोदी तो बनना ही है, क्योंकि वो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक वर्क किए हैं। पहले आपने कहीं देखा था? नहीं देखा था। क्योंकि आज क्या है कि आज के युवा है अपने प्रधानमंत्री को जान पा रहे हैं, अपने क्या कहते हैं देश के प्रेसिडेंट को जान पा रहे हैं, तो उन्हीं का ही ऐसा वर्चस्व है कि सभी लोग जान पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि मोदी के चेहरे को देख के बीजेपी को वोट मिल रहे हैं? मोदी के चेहरे के साथ उसके साथ प्लस क्या है कि सभी लोग वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोदी तो है ही, मोदी तो भाई हमारे मेन तो वही गार्जियन है। गार्जियन हमारा सही रहेगा तो पूरा परिवार सही रहेगा, गार्जियन से बड़ा कुछ नहीं होता। उसी प्रकार मोदी हमारे पूरे राष्ट्र के लिए अपना बहुत कुछ प्रेरित कर रहे हैं। इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं अभी लोकसभा इलेक्शन में, तो क्या लग रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको मोदी जी की वजह से फ़ायदा हो जाएगा? हाँ, ये तो बात सही है, कुछ कुछ तो है, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब अगर सब कोई अपने तरफ से बेसिस लेवल पर वर्क कर रहा है, अगर जब तक कोई वर्क नहीं करेगा तब तक वो कोई नहीं पा सकता है। अगर मोदी तो ठीक है, वो तो भाई उसको एक, वही मैंने आपको पहले ही कहा कि गार्जियन, अगर गार्जियन स्ट्रांग होगा तो देश तो हमारा ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। आप पार्टी को देख के वोट करोगे या कैंडिडेट को? नहीं, पार्टी क्या, कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे। जो हमारे लिए वर्क करेगा उसके लिए तो वोट करना ही है। क्या वर्क करना चाहिए पब्लिक के लिए? पब्लिक सेफ्टी हो गया, पब्लिक क्या कहते हैं कहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गई, एजुकेशन पर्पज़ से लेकर, मतलब मेन क्या है कि एजुकेशन ही ये सब कुछ है जीवन में। अगर विद्या है तो सब कुछ आपके पास है, अगर विद्या नहीं है तो आप कुछ किसी के लायक नहीं है। यहाँ पे आदमी विद्या सीखने ही आया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल थी। तो आज है युवा વર્ગ કે જે કહી રહ્યો છે હર હર મોદી ઘર ઘર મોદી, વિકાસની વાતો થઈ રહી છે। જે યુવા વર્ગ છે એ મત આપવા માટે પણ ઉત્સાહિત છે અને જે તેમના પ્રશ્નો છે, તેમની જે સમસ્યા છે અને સાથે સાથે જે વિકાસ છે તેને પણ ધ્યાને લઈ રહ્યો છે। તો આ છે યુવાઓની વાઇબ્સ અને યુવાઓનો મિજાજ। તો આજે બસ આટલું જ, ફરીથી મળીશું આવતીકાલે અન્ય યુવા વર્ગ સાથે। Co-presenting